Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall study about the Ampere's circuital law and its applications. And in this class, we shall discuss about the numericals based on the solenoid and toroid and some of the questions sent in your assignment. And I have to solve that questions. And all students should make sure make notes in your notebook. So first question is example number 27, that is a solenoid coil of 300 turns per meter. It means number of turns per unit length is 300 turns per meter. Is carrying a current of 5 ampere. I is equals to 5 ampere. The length of the solenoid is 0.5 meter. And has a radius of 1 centimeter. Radius 1 centimeter. Okay. Find the magnitude of magnetic field inside the solenoid. You all know about the formula of magnetic field inside the solenoid. B is equals to mu naught N. N means number of turn per unit length and I. This is the formula for magnetic field inside the solenoid, and you all know that the magnetic field inside the solenoid is uniform. Okay. Now put the value given in the question. The value of mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. N, number of turn per unit length, it is also given 300 turns per unit length, into current. Current means 5 ampere. The total value of 4 into 3.14 into 10 to the power minus 7 into 300 into 5, and after multiplying we have 1.9 into 10 to the power minus 3 Tesla. This is the formula of magnetic field. This is the value of magnetic field inside the solenoid. This question is very simple question based on the magnetic field of solenoid. Okay. Now another one type of the question is second one question, which is example number 28. Example number 28. Example number 28 is a solenoid of length 0.5 meter. Length 0.5 meter. Has a radius of 1 centimeter. Radius of 1 centimeter and is made up of 500 turns. 500 turn is the total number of turn present in the solenoid. This is the total number of turn. If it carries a current of 5 ampere, it means it carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? Here, a very few difference between the previous question and this question. Here, we require number of turn per unit length. It means N is the number of turn per unit length. इसके पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दे रखा था. यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है और टोटल लेंथ दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम स्मॉल n की वैल्यू पता कर लें. स्मॉल n इज इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ. टोटल नंबर ऑफ टर्न है 500 और टोटल लेंथ है हमारे पास 1/2. 0.5 मीटर को 1/2 लिख सकते हैं. मीन्स 1000 टर्न पर मीटर. ठीक है.
जैसे मैंने 0.5 को 1/2 लिख दिया और ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1000 टर्न पर मीटर हो जाएगा ये हमारा। अब जो है यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू ये हो गया 1000 मीन्स 10⁻³ लिख देते हैं, इंटू करेंट इज 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 4 हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4, 20 इंटू 3.14 कर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला हो जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एक जीरो है, पावर को हमने कम कर लिया यहाँ से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो 33 दिया गया था आपको। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है एग्जाम्पल 33 में। एग्जाम्पल 33 है, देखिए 33 दे रखा है, अ स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं जो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ये थिक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, थोड़ा सा इसको हम और बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर एरिया है। इसमें दिया हुआ है लॉन्ग थिक लॉन्ग वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए। इसका जो रेडियस है, सेंटर यहाँ ले लेते हैं, ये रेडियस जो है दे रखा है ए। क्लियर है ये बात। अगला दे दिया हुआ है कैरीज ए स्टेडी करेंट आई, इधर की तरफ एरो बना के दिया हुआ है, इसमें आई करेंट स्टेडी फ्लो हो रहा है। यूज द एम्पियर सर्किटल लॉ टू ऑब्टेन द रिलेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर विद डिस्टेंस आर। ठीक है, दो जगह इनसाइड वायर निकालना है और एक आउटसाइड वायर निकालना है। दिया हुआ है यहाँ पर बी हमें पता करना है आर डिस्टेंस पर, जिसमें R इज लेस देन और इक्वल्स टू A एक कंडीशन में निकालना है, और दूसरा R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू A। नहीं, R की वैल्यू जब ग्रेटर देन ही होगी, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। A से बड़ा अगर R होगा, R वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, उसका सेंटर से डिस्टेंस है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन बी एंड आर, ये भी पूछा हुआ है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलिए वो हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड पता करें इन दो प्लेसेस पर, फर्स्ट और सेकेंड, दो काम करते हैं। एक बार हमें आर इज ग्रेटर देन ए पता करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं देयर इज अ पॉइंट पी जस्ट आउटसाइड द वायर एंड वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। वी वांट टू फाइंड, ये डिस्टेंस जो है हमारा वो आर है यहां से यहां तक। ठीक है, अभी देखो आर इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा कि नहीं, आर इज ग्रेटर देन ए यहां है कि नहीं, यानी कि पॉइंट या मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर लिख देते हैं, आउटसाइड द कंडक्टर, ये हमें कर लेना है। आर इज ग्रेटर देन ए, आर इज ग्रेटर देन ए, तो ये आउटसाइड हो गया, आर जो है ए से बड़ा है। अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर एक क्लोज एम्पियरियन लूप हम ड्रॉ करेंगे, क्लोज लूप हम ड्रॉ करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ से पता करेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट, नेट करेंट रखना है। बी डॉट डी एल को हम अगर ओपन करें, यहाँ पर देखिए अगर ये वायर है तो आपका जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी सर्कुलर होगा,
किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। इसका मतलब अगर आप स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे लेते हो तो ये भी सर्कुलर है और जिसका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सर्कुलर है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल होंगे तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि BDL cos 0 हो जाएगा, ये 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। अब देखिए ये है एम्पियर लूप हमारा या क्लोज लूप जिसको कहते हैं, और पूरा वायर इसके अंदर है, तो टोटल करंट यहाँ हो जाएगा हमारा I, ठीक है। अब cos 0 डिग्री होने की वजह से ये cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा B तो बाहर चला आएगा इंटीग्रल से, DL इज इक्वल्स टू cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, DL बचा, B बाहर कर लिया हमने, म्यू नॉट I, ठीक है। DL मतलब ये हमने स्मॉल एलिमेंट इस पर लिया था, ये पॉइंट P हम सपोज कर लेते हैं, तो अगर हम पूरे इस क्लोज सरफेस पर इसको क्लोज लाइन पे इंटीग्रेट करें तो इस पूरे क्लोज लाइन का जो डिस्टेंस मिलेगा हमको वो मिल जाएगा 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। यहाँ से हमें B इज इक्वल्स टू मिल जाएगा म्यू नॉट I अपान 2 पाई r, ठीक है। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया आउटसाइड में। ठीक है, ये हो गया आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब जो है हम फील्ड इनसाइड पॉइंट, ये है आउटसाइड, ठीक है। अब हमें इनसाइड पता करना है, तो हम क्या करते हैं, अब यहां पर लिखते हैं फील्ड इनसाइड पॉइंट, ठीक है। इनसाइड मतलब कि हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट यहाँ है अंदर, ठीक है, यानी कि R की वैल्यू अब जो है इतनी ही रह गई, क्लियर है। ये R मैं छोटा सा लिख रहा हूँ यहाँ, यानी कि अब जो है हमारा हो गया ये R इज लेस देन R इक्वल्स टू A। तो हम लेस देन ले लिए हैं, इक्वल्स टू को नहीं लिए हैं, लेस देन ले लिए हुए हैं। लेस देन मतलब अब हमारा ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो अब हमें एम्पियरियन लूप यानी कि क्लोज लूप यहाँ पे चूज करना होगा, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा क्लोज पाथ भी यहाँ पर चूज कर लिया। अब फिर वो एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I नेट, ठीक है। यहाँ पर भी देखा जाए तो स्ट्रेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर ही होता है। अगर आप स्मॉल एलिमेंट यहाँ DL चूज करते हो, ठीक है, यहाँ DL स्मॉल एलिमेंट चूज करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, जिसकी वजह से cos 0 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ या यही कर ले रहा हूँ। ये B हमने क्या कर लिया, टोटल इंटीग्रल क्लोज लाइन इंटीग्रल B DL cos 0 डिग्री हो जाएगा, ये भी म्यू नॉट I नेट। अब समस्या है, I करंट जो है पूरे वायर में फ्लो हो रहा है, लेकिन अभी जो हमारा क्लोज लूप है उसके अंदर सिर्फ करंट पता करना है। ये जो लूप दिख रहा है अंदर, सिर्फ इस पार्ट में कितना करंट आ रहा है। टोटल करंट हमें पता है I, सिर्फ इस लूप में कितना करंट आ रहा है ये हमें पता करना है। तो अभी हम इसको I नेट ही रखते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, एम्पियर्स लूप लॉ में ये बताया गया था कि नेट करंट इनक्लोज्ड विद इन लूप, तो इस लूप के अंदर नेट करंट, चूंकि I करंट यहाँ अगर रख देंगे तो गलत हो जाएगा। जब हमने बाहर लूप लिया था तो पूरा वायर इसके अंदर था, उस समय टोटल करंट हमने I ले लिया है, लेकिन अभी हमने लूप अंदर लिया और टोटल करंट हमारा टोटल वायर में I है, तो सिर्फ अंदर वाले में जो करंट होगा वो कितना होगा ये हमें पता करना है। अंदर वाले में सिर्फ करंट निकालना है I नेट, तो I नेट की वैल्यू हो जाएगी I नेट। ये हमें पता करना है कि वायर के अंदर, जैसे टोटल वायर में जो करंट है, यानी कि 2 पाई A स्क्वायर एरिया में, पाई A स्क्वायर में जो एरिया में जो करंट है वो I है, ठीक है। पाई A स्क्वायर कैसे मैंने लिख दिया, जैसे जो ये कंडक्टर है हमारा उसका रेडियस A दे रखा है पहले ही, तो पूरे अगर क्रॉस सेक्शन का अगर हम एरिया निकाला है पूरे ये क्रॉस सेक्शन का, तो वो होगा पाई A स्क्वायर, और उस पाई A स्क्वायर में करंट है I, तो पर यूनिट एरिया में कितना करंट होगा, पर यूनिट एरिया
करंट इन पर यूनिट, करंट पर यूनिट एरिया लिख दे रहा हूँ, करंट पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा I अपान पाई ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया से डिवाइड कर दिया टोटल में। अब हमें निकालना है देन नेट करेंट इन, जो हमारा अब लूप है उसका रेडियस अगर देखा जाए तो R है, सिर्फ हमें इसी लूप के अंदर कितना करंट है निकालना है। तो इन पाई आर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा आई नेट, यहीं से हमको मिलेगा लूप के अंदर, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे आई अपान पाई ए स्क्वायर में। ये है करंट पर यूनिट एरिया, और इतने एरिया में आपको पता करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। यूनिट का अगर आपको करंट पता है तो इतने एरिया का निकल आएगा। ये हमारा नेट करंट हो गया, आई नेट का वैल्यू। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो बी को हम बाहर कर लेते हैं, बी को बाहर कर लेंगे, क्लोज इंटीग्रल डी एल कॉस जीरो का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 म्यू नॉट, और आई नेट का वैल्यू आ चुका है पाई आर स्क्वायर आई अपान पाई ए स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर देखिए डीएल जो हमारा मिलेगा क्लोज इंटीग्रल डीएल, क्लोज इंटीग्रल डीएल हमारा इसी लाइन पे है, तो क्लोज इंटीग्रल इसका लेंगे, टोटल इंटीग्रल लेंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये वैल्यू बचेगा। बी को अगर हम यहाँ से सब्जेक्ट करेंगे तो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर, 2 पाई आर भी नीचे चला आएगा, और ये ए स्क्वायर, एक आर से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा म्यू नॉट आई आर अपान 2 पाई ए स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिलेगा इनसाइड आई आर अपान 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा इनसाइड फील्ड, इनसाइड पॉइंट। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि प्लॉट द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ बी विद डिस्टेंस आर। बी का आर के साथ क्या ग्राफ बनेगा, तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं आर की वैल्यू, और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, बी की वैल्यू। ठीक है, होना तो चाहिए उधर, लेकिन यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब देखो, आप देख रहे हो जब आउटसाइड थे हम, यानी ए की वैल्यू जब क्या थी, आर की वैल्यू जो है ए से बड़ी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें है वो क्या मिल रहा है, बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। देखिए अब कांस्टेंट क्या क्या है, ए तो बदलेगा नहीं, वायर का रेडियस तो बदलेगा नहीं, पाई भी नहीं बदलेगा, 2 भी नहीं बदलेगा, म्यू नॉट भी नहीं बदलेगा, करंट भी नहीं बदलेगा, बस डिस्टेंस बदल सकते हो आप आर। ये मैग्नेटिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यानी आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले हम अंदर से चलते हैं, जब डिस्टेंस जीरो मतलब हमारा जो ये आर पॉइंट है बिल्कुल सेंटर पर ही हो, आर 0, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे कम होगा, 0 के लगभग होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आर बढ़ाओगे, तो बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट पाथ में बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक आर ए के इक्वल ना हो जाए। इस एक्सिस पर आर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ए के बराबर जब हो जाएगा उस समय हमें मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। अब जब ए से बाहर जाओगे, यानी यहाँ से चलते चलते हम यहाँ तक आ चुके हैं, इससे आगे जाएंगे तो B जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, और इसका ग्राफ बनता है ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच, सेंटर से वायर के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको पेपर में पूछा जाता रहता है। ठीक है ना। अब जो है इसी में आगे जो क्वेश्चन जोड़ा है सेकेंड वाला पोर्शन, उसमें कहा हुआ है कि जो ये आपको R लेना है ना वो a/2 के बराबर लेना है। तो बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पर R है वहाँ a/2 रख दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है कि ये चीज़ सर हमको सेकेंड वाला पार्ट नहीं समझ में आया,
मैंने इनसाइड द वायर यहाँ है और आउटसाइड द वायर यहाँ है, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। और उन पे ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए इनसाइड द वायर जब आर की वैल्यू 0 होगी तो बी की वैल्यू 0 होगी, आर बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन मिलेगा धीरे धीरे। जब आर ए के बराबर हो जाएगा, मतलब ओरिजिन से चलते चलते जब आप सरफेस पे आ जाओगे उस टाइम हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और देन फिर ये घटते घटते एकदम 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको नोट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। सो दिस क्लास इज़ ओवर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।